Hello, bonjour, adab, assalamu alaikum, and welcome to UIK show. Every time we just bring an exciting, amazing personality to UIK show. This time, believe me, this time there's you can say an iron lady. You can say there's a woman who have achieved a lot of things in her life. और उसके बारे में अगर मैं इनके करामात और इनकी अचीवमेंट गिनवाता चलूँ तो शायद कम पड़ जाएंगे. बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया UIK ऑफिशियल, तो अभी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपकी तरफ हमारी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो बर वक्त पहुंच सके. और इसके साथ अगर आपने मेरे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, डू फॉलो इट राइट नाउ. अभी आते हैं हमारे आज के जो मेहमान के बारे में. क्या बताऊं मैं उनके बारे में. वो एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, उसके साथ साथ एक बिजनेस वूमन है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है. शी इज़ अ वंडरफुल ट्रेनर. कॉर्पोरेट सेक्टर में उसका एक अच्छा खासा नाम है. उसके साथ साथ अगर मैं गिनवाता जाऊं कि वो टैक्स रिफॉर्म्स या टैक्स रिलेटेड कंपनीज में भी अपने हस्बैंड का अच्छा खासा एक सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है. आजकल के दौर में ऐसी औरतें बड़ी कम मिलती हैं. तो मैं अगर गिनवाने पे चल रहा हूँ तो कोई 8-10 काम तो मेरे इल्म में है कि वो अभी तक कर रही हैं. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय गेस्ट फॉर टुनाइट, and here she is, Miss Farah Akbar. Welcome to the show. अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू वेरी मच. वालेकुम सलाम. आपने इतनी सारी बातें बोल दी हैं, मेरे लिए तो आपने कुछ छोड़ा नहीं है. नहीं, मुझे ये था कि मैं जब आपको बुलाऊंगा तो मैं क्या बताऊं. आप एक मोटिवेशन स्पीकर जी, है, यू आर अ अल्हम्दुलिल्लाह. कॉर्पोरेट ट्रेनर, यू आर अ बिजनेस वुमन, यू आर अ Yes. प्रोफेसर, यू आर अ good mother, you are a Yes, housewife. I'm trying What to- should I call you? I'm trying to be a good, I mean, I just try to be a good person. Oh, mashallah. But this is what I know about you. This is Yes. what the people around you know about you. I would definitely ask you, who is Farah Akbar? Like Okay. that Farah Akbar which mostly people don't know about her. How does she become a Farah Akbar in today's date? I want to know this. My viewers want to know this. Thank you, Beth. Thank you for such a detailed intro, I would say. Although there are many things which are still not highlighted, and I'll try if we can be able to have some discussions on those things which I really want to Sure. let people know about me, particularly from the point of view of how a woman or a girl can contribute to the society, can add value to people's life. And above all, Okay. when you become a mother, I must say, it becomes 3 times your responsibility. Whatever you are doing, you have to consider it not yourself. You have to think from the point of view of your kids. That's perfect. And this is something I must say, I'm blessed to have 3 beautiful kids, alhamdulillah. And let me say, who is Farah Akbar? Okay. Definitely. Yeah. So this is not something which happened in just like a few years. It's a long journey which started back in 90s, late 90s. And I decided to go for a professional education. Okay. It By was the way, what is challenging. your educational background? Actually, my educational background, let me just sum it up in like a nutshell. I would say I hold masters in business. Okay. I did my masters from IBA in Karachi. And IBA? IBA. IB is a जी. trademark in हाँ जी, Pakistan बिल्कुल. related to business. So I'm honored today that I'm having a guest from IBA. So हाँ जी, IBA कराची से पाकिस्तान. there was it was a big thing, of course. उस time पे जब मैंने graduation किया, it was in early 2000s. So it was, of course, there were not many universities, not many business schools. absolutely right. And then you have you go to a top-notch one. So it's not an easy thing. I Okay. remember that when I got admission in IBA, I felt like one of my dream is come true. Okay. Next, there are many things to go. जी, तो going back there, IBA से MBA किया, and then when I was in my last semester, I actually got a job. I mean, complete नहीं हुआ था, and I was offered a job. That's why we always, heard about IBA. That Exactly. when you are in IBA, Yes, I before was still graduating, you will not- get a job. हाँ, ऐसे ही था, अभी लास्ट thesis वगैरह नहीं हुआ था, and I got the job and I started working. I started my career with automobile.
Okay. And I started in the marketing department in Park Suzuki. Okay. और अच्छा लर्निंग हुआ, बहुत अच्छा लर्निंग हुआ. I must say I really appreciate the way my Japanese management actually boosted my morale to work, because I was the only girl in that department and there was not. I mean, I was working with all other guys and it was challenging, but it was interesting. It was interesting. It was very interesting. मेरा जो आप कह लें मैनेजमेंट का जो साइड है बहुत स्ट्रांग हुआ. टाइम Okay. मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उन्होंने बहुत वर्क किया उसके ऊपर. Okay, but this is all about your professional career. But before that, you have just skipped about your अच्छा, upbringing मेरा and all these things. बचपन. Exactly. But I would definitely ask something. What we know right about Farah Akbar, it's a lady who have passion, who have that struggle. Like she has come through all of these struggle life. But how was she when she was a kid? Okay. Let me take you back when I was only 3 years, 4 years, or let's say 5 years. जहाँ से I remember, I was a very timid person, Okay. a very shy baby. Not I- like today's Farah. No, it was absolutely opposite. It Okay. was completely different Farah. Okay. And I was so shy and so timid. I was like, I do not want to talk to anyone. I used to stay in my So own whatever shell. we are seeing right now is just because of IBA. No, it was not because of IB. I must say my schooling, Okay. जो मेरा primary schooling हुआ, उसने बहुत मुझे जो है वो So could I say to my viewers that this is difference between a tart or Sarkari school and elite class school? So called. नहीं, मैं ये भी नहीं मानती, इसको भी नहीं कहती. Okay. टाट का स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, अगर आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए, Oh, that's तो something. या अगर आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए तो it can just like you become like anything. Then I must say that I give credit, I pass credit to my teacher, which I had in my year 5, grade 5 से लेके grade 9 तक. She was my class teacher. But I would And- definitely add something. You told about like if someone find a very good teacher, he could हाँ, be अच्छा or she उस्ताद, could be अच्छा a उस्ताद, very अच्छे- brilliant, बल्कि brilliant अच्छे student. उस्ताद, But अच्छे if उस्ताद. someone got a good mother, believe me, I have met her kids a few days back. Believe me, when I was just sitting with them, 7 years. What is My the age of boy your is younger boy? 9 years. 9 years. A 9 years kid is just telling me about my profession. A 9 years kid is like, oh man, I was just surprised. I was just telling people, हाँ, मुझे But याद है this kid आपने is मुझे कहा eating. कि आप चारों कुल पढ़ के इन पे दम कर दें. yes, exactly. Yes. I was surprised. Mashallah. The Mashallah, way they are grooming, the way they have been so like, इमामत की थी उसने 9 साल के बच्चे ने हमें. अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह, I was so surprised. But ये आपके husband especially अकबर साहब उनका and सपोर्ट you. है. This is all with his support that I am able to do all this. When So- I met him, when I decided to marry him, Don't tell me know- that you are just going to share the love story moment between you and मैं Akbar वो भी bhai. बता दूंगी. There is no. We I wanna- mean, it was we- very we wa- fast. Okay, though. we- नहीं, मैं वो पॉइंट we लेके wanna आ रही listen थी. that. हाँ, इंशाल्लाह. मैं ये बताना चाहती थी कि जब when he proposed me, Okay. and I was like a bit reluctant, so he said, "Wherever you want to go, go." How This much? Akbar bhai proposed you. He proposed me. Absolutely. This one Akbar bhai. He was a person who proposed me. और मैं थी आई माई शाइम के मैं करूंगी या नहीं करूंगी. Okay, it was just Akbar bhai, like whatever I have heard about you is completely opposite. no, he proposed me. Okay. And खैर वो हम बाद में उसको करते हैं डिस्कशन. लेकिन but he told me that whatever you want to do in life, do it. Because I told him, he was in Saudi at that time. Okay. And my concern was I'm a professional woman and I'm professional girl at that time. I want to work. I want to continue my profession. I Okay. don't want to like I'm not a person कि तुम जो मुझे कहो कि मैं घर बैठ के तुम्हें रोटी बना के दे दूं सिर्फ, तो ऐसा नहीं हो सकता है. साफ कह दिया था आपने. हाँ, मैं हूँ नहीं ऐसी. Okay. Honestly, I'm not like that. करती हूँ लेकिन but I'm not that Because I person. have जो seen मेरी you at that personality age. नहीं है. ठीक. तो he said okay, तुम्हें जो करना है करो, तुमने जितनी बुलंदी पे जाना है जाओ. Okay. Okay. So my support is with you.
एंड माशाल्लाह। आई एम सो ब्लेस्ड विद दिस कि मैं ये कहूँगी कि अच्छा लाइफ पार्टनर आपको ना सिर्फ ये कि ही इज़ अ बिग सपोर्ट टू यू, ही इज़ योर शैडो, राइट? एंड प्लस not only support in terms of right ke moral support hai, in all different ways, like of course I traveled a lot to many countries for my corporate programs. I left my kids here and I can say that I was relaxed. No, Akbar is there and I know he takes care of kids more better Honestly, than me. you are a blessed woman. So alhamdulillah khair, going back to the schooling, so I was saying that a good teacher really contributes a lot. And that was the thing I must say that she used to say to my mother, कि your daughter tries a lot. She tries to be in the top level of the students. And कि मेरी mother पढ़ी लिखी नहीं थी. My mother was, उन्होंने अपना high school किया होगा 7th 8th grade तक, बस उससे ज़्यादा उनकी education नहीं थी. Okay. But my mother was very passionate कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है. Okay? और उन्होंने वाकई में वो काम किया, उन्होंने हमें पढ़ाया. मेरी दो बड़ी जो सिस्टर्स हैं, दे आर मास्टर्स, द होल मास्टर्स. वन इज़ एंगेज विद अ स्कूल इन कराची, अदर इज़ नॉट वर्किंग, बट येस. फिर उसके बाद मेरे भाई भी सेटल्ड हैं. तो Okay. खैर उनका जो सपोर्ट था या उनका जो अपब्रिंगिंग था, आई हैव सीन हर वर्किंग लाइक एनीथिंग, बट सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारी एजुकेशन में ब्रेक नहीं आना चाहिए, तुम्हारा स्कूलिंग छूटना नहीं चाहिए. Okay. और ऑल्दो शी हैड मेनी चैलेंजेस, वो मैं भी आपको जब एक्सप्लेन करूँगी तो वी विल गेट टू नो कि कैसे चैलेंजेस उनके पास भी थे. बट शी हैड रियली वर्कड हार्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स. ठीक, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. व्हेन आई वाज जस्ट डूइंग रिसर्च ऑन योर लाइफ जर्नी, मुझे पता चला आप डायबिटिक भी हैं. हाँ जी. मेरा डायबिटीज़, मैं ये कहती हूँ कि मेरी डायबिटीज़ के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है और हमारी इस दोस्ती हमेशा रहेगी. सुनिएगा, एक खातून कह रही हैं जो बचपन से डायबिटिक है, कहती है कि मेरी डायबिटीज़ के साथ एक बड़ी पुरानी दोस्ती है. हाँ, मैं So, एक प्री-टीन्स, फियर जो लोग को खौफ होता है. नो डाउट आई नो पीपल आर रियली लाइक, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा, बट मैंने हमेशा इसको एक आई ओन्ड इट कि ये है मेरे साथ, एक कंडीशन अल्लाह ने मेरे लिए रखी है, तो मुझे उसके साथ चलना है. आई हैव टू वर्क विद इट. इज इट इजी टू गो विद द नहीं, इट्स नॉट एट ऑल ईजी. इट्स Okay. एब्सोल्युटली नॉट ईजी. अब तो मेरी, आप ये कह लें ना, प्री टीन से मैं उस कंडीशन के साथ हूँ. ठीक है, 30-35 ईयर्स का जो है वो मैंने पूरा टाइम दोस्ती उसके का एक, साथ हाँ, लिया है. ठीक. ठीक है, तो इट्स नॉट ईजी. ऑफ कोर्स Okay. इट्स नॉट ईजी, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो. ओके. अगर आपके If you अंदर have a will, विल you can, पावर है, हाँ. अगर आपकी विल That's- पावर है दैट यू रियली वांट टू सर्वाइव, यू वांट टू लिव विद इट. अच्छा, एक्चुअली मेरी मैटरनल साइड पे, मेरी मदर की साइड में डायबिटीज़ थी, ओके. बट दैट वाज टाइप 2, और मैं जो हूँ वो टाइप 1 डायबिटिक हुई, क्योंकि मैं अर्ली एज में जो है वो अर्ली टीन्स में जो है वो आई गॉट डायबिटिक. मेरी दो छोटी बहनें भी थी, अल्लाह ने बुला लिया उन दोनों को. दे वर क्रॉनिक केसेस. उनका तो मैं ये कहूँगी कि बचपन उसके साथ ही गुजरा जैसे मेरा गुजरा. बट येस, दे वर मोर क्रॉनिक केसेस, या ये कह लें कि वो बाय बर्थ उनके अंदर थी. दे वर ऑल्सो गुड, बट खैर जो मेरे रब की मर्ज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ने मुझे शायद दुनिया में कुछ काम करवाने थे अच्छे. तो बहरहाल आई हैड वर्कड हार्ड विद डायबिटीज़. और आप कह लें कि 34 years is not a... If I ask you what sort of challenges you have faced and how With did you overcome diabetes? that? With diabetes? Yes, yes, yes. उबैद, जब ये डायग्नोस हुआ था ना, तो उस वक्त तो मैं लाइक कुछ इसको इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि आई वाज अ किड, राइट. बट येस, मेरे ब्लड शुगर लेवल्स अप डाउन होते थे, और स्कूल मिस होता था, तबीयत स्कूल में भी ख़राब हो जाती थी. ऐसा भी था. फिर वही बात है कि अच्छे टीचर्स, अच्छे उस्ताद का जो है वो साथ था, उन्होंने फिर भी बकअप किया. एंड देन उसके बाद जो है वो, आई रिमेंबर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज लाइक इन माय कॉलेज लाइफ, मैं कहती थी यार कि ये क्यों है मेरे साथ.
Why is it with me? Because college Did you में blame sir- yourself or No. Allah No, or never, the never, the luck or never, something? never. Because mostly people in my home, my own sister is, she is a, you can say, a very rare case in Pakistan. She have shunt issue. She had VP shunt on the left side and the VA shunt on the right side. She had a heart bypass and she had gone through 17 surgeries in past 7 years. I did it, in past 7 years, so I know how I she is can surviving. understand. And she's a very brilliant, a brave girl. MashaAllah. But somewhere, she always, complained that why me? She, Alhamdulillah, she has a willpower. Every time when I just see her on a, operation theater bed or somewhere on a deathbed, you can say. So, मैं कभी कभी हिम्मत हार जाता हूँ. वो उम्मीद दिलाती है. I'll survive. I'll fight. लेकिन कभी कभी इंसान को होता है ना, why me? अच्छा, Out इसका of the जो है ना, millions. इसका मेरे पास एक बहुत सिंपल सा जवाब है. Hmm. मैंने हमेशा अपने को खुद को भी यही कहा है और मैं सबको यही कहती हूँ. सी देयर इज़ नो परफेक्ट मॉडल इन द वर्ल्ड. Okay. कोई परफेक्ट मॉडल है ही नहीं. Hmm. कोई, अगर हम ये कहें ना कि समवन इज़ वेरी वेल्दी, Hmm. तो ऐसा नहीं है कि उसके पास और कोई मसला नहीं है. ठीक है. और कोई जो है वो बहुत अच्छी हेल्थ है, उसके पास पैसा नहीं है, या किसी के पास कैरेक्टर नहीं है, या किसी के पास कोई कमी है, किसी के पास औलाद नहीं है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ अ टेस्ट, राइट. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक अल्लाह से ये शिकवा नहीं किया कि वाई मी. क्योंकि मुझमें जब अल्लाह कहता है ना कि अपने से नीचे देख लो, जब भी तुम्हारा जो ऐसा कोई तुम्हारा जहन में, माइंड में कोई ऐसी बात है, तो अपने से कम वाले को तो देखो, उसकी तकलीफ देख लो, उसका परेशानी देख लो. तो मैंने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया. हाँ, मैं वही बताने जा रही थी कि अराउंड 16-17 ईयर्स की एज में आई बिकेम वेरी सिक. बहुत ज़्यादा बीमार हुई नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा आप कह लो कि इमोशनली वीक हो रही थी. इमोशनल वीक ये होता है कि आप अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं, बहुत कुछ फील कर रहे हैं, यू डू नॉट एक्सप्रेस इट, राइट. I'm just seeing you right now that you're getting emotional. हाँ. कभी किसी चीज़ ने आपको ज़्यादा हर्ट किया हो? मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मुझे सिर्फ, बल्कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था ना कि वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड के, फरा अगर तुमसे कहूँ कि अपने लिए दुआ करो तो तुम्हारी दुआ होगी. तो मैं कहा मेरी बहनें ठीक हो जाएं. तो ही सेड ये तुम्हारे लिए, अपने लिए तो ना हुई, दूसरी दुआ क्या करोगे? मैं कहा मेरी अम्मी खुश रहें. तुम्हारी अपनी दुआ कहाँ है? मैंने कहा मैंने अपने बारे में सोचा ही नहीं, तो वो है ही नहीं मेरे पास कुछ. मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, ये चाहिए. बस दिस इज़ माई वर्ल्ड एंड आई नीड देम टू बी ओके विद मी. ये अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ. So I can say you have taken this weakness as your strength. हाँ, क्योंकि उस चीज़ ने मुझसे स्ट्रगल बहुत करवाया, फिर बहुत स्ट्रगल करवाया. देखें, पाना खोना ज़िंदगी में रहता है. इट्स नॉट लाइक कि हम हमेशा हमें गेन ही होता है. लॉसेस हैं लाइफ में, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हैं. मैंने अपनी लाइफ में ना 3-4 प्रिंसिपल्स बनाए थे. उसमें ये था कि आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज, आई विल नेवर Brilliant. गिव अप, Brilliant. आई विल नेवर गिव अप, Okay. एंड आई विल नेवर रिग्रेट. ये 3 चीज़ें जो मैंने अपने से बांध ली थी कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना, अननेसेसरी कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं. दूसरा, मैंने गिव अप नहीं करना. Okay. और मैंने जो है वो स्ट्रगल करते रहना. जब तक अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह करवाता रहे, बस हिम्मत अल्लाह देता रहे. तो अल्हम्दुलिल्लाह विद दैट स्टेट ऑफ माइंड बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और द आउटकम इज़ हेयर. अभी आई स्टिल से कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकी. कभी मैं कहती हूँ यार मेरे दिन में जो है ना 24 आवर्स नहीं होने चाहिए, मेरे दिन में 48 आवर्स होने चाहिए. नहीं, right now, like, mashallah, you are brave. You are like an inspiration for all the young ladies, for all the young champs. But if I request you, what advice you will give to people, similar people like you have some health issues or who have some disabilities or something they are lacking in their life, and instead of moving on, they are just complaining for that specific thing that is lacking in their life.
मुश्किल होता है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ अपनी सोच को डाइवर्ट करें। कैसे? ये फ़रा में था कि उसने अपने आप को इस तरीके से रगड़ा दिया, निखारा। शी सर्वाइव्ड, शी मूव्ड ऑन, शी हैड फाइंड पर्सन लाइक उसके लिए मैंने बहुत अकबर। अर्ली एज में एक सोच डेवलप कर ली थी कि जब कोई दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ओके। ठीक है, मेरे साथ एक वीकनेस है, मैं डायबिटिक हूँ, अच्छा ओके, मुझसे नहीं कभी कंसंट्रेट किया जाता, तबीयत नहीं सही है, मैं नहीं कर पाती हूँ, और आईबीए के साथ मैंने बहुत स्ट्रगल अच्छा, किया है। मैं It इसको is थोड़ा not सा easy. मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। इफ़ टुडे फ़रा इज़ विदाउट अकबर, अगर इसको अकबर ना मिला होता, जो जर्नी इसने अकबर के थ्रू, जो आपने कहा कि मुझे एक सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है, एंड फॉर दोज पीपल जिनके पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कितना आप उनको डिफरेंट पा रही हैं? अच्छा, ये विदाउट बहुत अकबर, अच्छा विदाउट अकबर वुड इट बी पॉसिबल? नहीं, it was not, it could not have been possible So for for me. every- Why I would say, see, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वो सोसाइटी बहुत मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। ठीक है। ठीक है, जहाँ कोई लड़की फीमेल ग्रोथ करती है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं एज अ सिंगल। आई मीन अगर वो मैरिड नहीं है तो इसको सामना करना, इसको संभालना, इसको लेके चलना आसान नहीं होता। ठीक। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। Okay. मैं अकबर से मेरी जब शादी हुई है, ऐसा नहीं है दैट आई हैड नॉट कम अक्रॉस many other people in my life. I already had many people who came, proposed me, left. अच्छा, तुम डायबिटिक हो, क्योंकि दिस वाज माय थिंग कि मैंने जिससे भी शादी करनी है, ही शुड नो दैट आई हैव अ कंडीशन। ओके। तो ऐसे लोग आए जिन्होंने प्रपोज किया, एंड व्हाट वाज they द were रिस्पांस very ऑफ अकबर? interested, they were very serious. ओके। जहाँ पता चला कि फरा डायबिटिक है, तो दे बैक्ड आउट। ओके। ठीक है, ऐसे भी आए, कुछ दूसरा कास्ट अलग थी, कुछ ऐसे भी थे। ठीक है, और बस अल्लाह ताला ने ये डेस्टिनी बनानी थी अकबर के साथ कि अच्छा, अकबर जिनके को- पास अकबर नहीं है, मैंने हाँ, सवाल मैं ये उस किया पे था। आ रही थी। ठीक। तो अगर अकबर नहीं है तो फरा क्या होती, राइट? तो फरा शायद ऐसे ना होती जो आपके सामने है। तो जो Honestly. लोग जिनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो क्या करें? अच्छा, इसमें Is a motivation सपोर्ट सिस्टम speaker, is a देखिए, हाँ leadership ठीक है, trainer. मैं इसको एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। मैं बिल्कुल फरा कुछ ना कुछ तो होती, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती थी, ठीक है ना, क्योंकि अकबर के साथ जब अकबर भाई ऐसा नहीं है कि सारा क्रेडिट आपको जा रहा है। हाँ, अगर आप नहीं भी होते तो फराज शायद और भी ज्यादा कर जाती। नहीं, अकबर ये तो नहीं बच्चों भी ने होते। रोका हुआ है। हाँ, ये मैं इस पे ही आ रही थी कि जब आपके साथ बच्चे आ जाते हैं, वैसे ये शो जब responsibilities देखेंगे ना होती तो बाद में बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ बिग थिंग, इट्स Okay. नॉट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि कैसे कोप अप कर लेती हो, बच्चे पढ़ भी अच्छा रहे हैं, मैनर्स में भी अच्छे हैं, रिलीजन को भी हद उनका से जो है ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल है। हद से अल्हम्दुलिल्लाह हद से अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिलीजन का भी उनको तुमने जो है वो बिल्कुल सही उनको गाइडेंस दे वैसे दिया मैं है। बार बार बता रहा हूँ, आपके बच्चों के साथ मिलके ना मैं एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं हो गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हूँ। मैंने उस दिन अपने आप को बड़ा नालायक समझा। ऐसा नहीं हमने है। अपने एजुकेशन सिस्टम को बड़ा कोई हाँ, आप वो समझ तो लीजिए मैं खुद कहती हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत उसको बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत पीछे है, है, बहुत पीछे। नो डाउट, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन मिल रहा है मेरे, मैं उसको कंपेयर करूँ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से, तो इट्स वे टू हाई एंड वे टू डिफरेंट। सो वी विल सम अप दिस सेशन, दिस सेगमेंट, कि अगर एक इंसान में कोई इबनॉर्मेलिटी है, कोई कमी है, कोई उसमें ऐसी चीज़ है जो अपने आप को बाकी इंसानों के साथ कंपेयर करके अपने आप को नॉर्मल नहीं समझ रहा या पूरा नहीं समझ रहा, तो जिस तरीके से फ़रा ने बात की कि आई कुड बी मच बेटर, मैं अगर यही मेहनत मैं कर रही हूँ, अगर मैं शायद मैं ज़्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी, इट्स अपॉन मी कि मैं अपनी इस डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कैसे या स्पेशल एबिलिटीज़ में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको अगर सम अप करूँ एक कुरान की आयत के साथ कि अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वहाज़ल बलतल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। जब अल्लाह ताला ख़ुद आप पे आप ये जो तीन व ज़ैतून इन सारों की कस्में कहते हैं और कहता है कि
लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि मैंने इस मखलूक को सबसे बेहतर बनाया हुआ है। तो कोई तो चीज़ होगी कि वो रब कायनात आप पे कसम खा के कहता है कि मैंने ए अशरफुल मखलूक़ात सबसे बेहतर आपको बनाया हुआ है। तो एट दी एंड आप में अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो खुदा ने जब आपको बनाया है तो बग़ैर मकसद के तो नहीं बनाया होगा, बेशक। तो कोई तो मकसद होगा. Just find it out. You'll find the aim of your life. Moving toward the other segment, and that is your corporate experience, हाँ your जी. training Okay. experience. How does it happen from It's a very interesting story a again. businesswoman to a corporate trainer? Acha, this is a very interesting, part of my life. In Okay. fact, I enjoy it a lot. Okay. And I must say that it's one of the things where I find I am real myself. Okay, why I said so? मैंने पहले बताया था I was a very shy kid. Okay, but Okay. then it actually revealed to me when I was in a better school with a better teacher that nay, I am something. Okay. I am actually something. So Okay. I must say IBA ने उसको बहुत पॉलिश किया, बहुत किया एक्चुअली. IBA सिखाता है कि आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है IBA. उसे होता क्या है बीए में? सारे जाते हैं. स्ट्रेस अच्छा, लम्ज और आईबीए के बारे में एक चीज़ तो मशहूर है. लम्ज में हमारे वो एक दोस्त हैं, क्या नाम है वो सिंगर जो हैं, मैं नाम भूल गया उनका. Which one? आईआर पढ़ाते हैं, वह सोशल साइंस डिपार्टमेंट में होता है, म्यूजिशियन भी है. मेरे जहन में नहीं है. लाल बैंड के जो हैं, हाँ, उनका नाम नहीं मुझे भी याद. डॉक्टर क्या है, ओके. But he is really good. हाँ. तो लम्ज और आईबीए में क्या ऐसा पढ़ाया जाता है कि वहाँ का बच्चा जो है प्राइम मिनिस्टर को भी लाजवाब कर देता है? अच्छा, इसका मैं आपको बड़ा आसान सा एक जवाब देती हूँ. हाँ. सिंपल सा कि आईबीए में एक्चुअली फैकल्टी का रोल तो जितना है, लेकिन स्टूडेंट्स का अपना बहुत रोल होता है. ठीक है, अब तो खैर इट्स वेरी कॉमन इन ऑल द यूनिवर्सिटीज लाइक दैट. इफ़ यू नो, आई एम टीचिंग इन 2 यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. दुबई में आई एम टीचिंग एज an adjunct faculty. I'm teaching in 2 Indian universities. Okay. And it's been like, again, a great experience to have all the Indian students sitting in front of you, and you are the teacher to them, and you're teaching them. And it's very being a interesting. Pakistani. Being a Pakistani. And must say, I'm always getting a huge, applaud and honor from them. But don't tell it's me amazing. you have seen them Pakistan India meet together with them. नहीं, वो नहीं किया है, लेकिन डिस्कशंस किए हैं उनके साथ. डिस्कशंस किए हैं, और इनफैक्ट जब कभी कोई वो चपकलिश होती है दोनों कंट्रीज का, तो वो भी. तो टीचर चुप हो जाती है, बच्चे चुप हो जाते हैं? नहीं, दोनों ही बोलते हैं ऑफ कोर्स. बट लेकिन ये कि मैं ये कहूँगी कि मैंने उनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है कि दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स अ लॉट. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये थोड़ा मिस होता जा रहा है बहुत. right. जो है ना ये, लेकिन वो अब लाइक मैं आपको बता रही हूँ, आई एम अ पाकिस्तानी, दे नो दैट आई एम पाकिस्तानी, वट एवर. बट जहाँ पे रिस्पेक्ट की बात आती है, वो ऊपर से आंसर नहीं करते. ठीक हो गया. दे नेवर. इससे तो आगे भी बढ़ रहे हैं. तो आप देख लें ना, दुबई में वी हैव more than 5-6 universities which are big universities from India. खैर, तो लीडरशिप ट्रेनिंग की तरफ आते हैं. हाँ, मैं उसकी तरफ आई थी. मेरा जो है वो फोकस था कम्युनिकेशन के ऊपर. और when I started working in Park Suzuki, then I moved to Diwan Group, and then I went to Kabul, if you know that. I lived in Kabul for a year and a half. Yes, and in Kabul actually, when I started working with telecommunication there, it's a French telecommunication company. So, उनके साथ I worked for a year and a half. तो वहाँ पे I had diversity. I had Polish people, Americans, Europeans. You work with the locals or with the Americans or European? नहीं, सबके साथ. You Afghans के साथ. Okay. Afghans were like the ऑपरेशनल टीम्स, और जो सीनियर टीम्स थी वो सारी, जो सीनियर पोस्ट थी, पोजीशंस थी, वो सारे मुझ समेत कुछ लोग जो हैं वो यूरोपियंस थे, अमेरिकन्स थे, इंडियंस भी थे, एशियंस भी थे. सो इट वाज अ ब्लेंड ऑफ ऑल डिफरेंट नेशनैलिटीज. Okay. There I started
providing training to marketing teams. And then I felt like I have a flair to be a trainer. I can be a very good corporate trainer. Okay. And then I decided that I shall start working on this. Okay. And then I got some certification for the corporate training programs के लिए trainer की certification लिया Dubai. I came to Dubai. I settled in Dubai, and I started working as a part-time faculty in University of Dubai, a very big university again. I started having my programs in University of Dubai. वहाँ पे एक दो programs किया. Then I got the offers from the corporate sector. I was called by ADNOC. I did some programs for ADNOC, then Abu Dhabi Police. And then I said, okay, now this is something which actually I enjoy, and I have the flair to be a trainer. Perfect. Because what I do actually is not purely teaching. We are not teaching in training programs. It's a blend of your practical experiences that you pass it on. You facilitate the trainees with your learnings, with your knowledge, and with your practical experiences. Okay. So I made those programs, I designed the programs, and I delivered the programs. So I would say that I entered into the governmental sector of UAE, Abu Dhabi Police, Abu Dhabi Media, ADNOC, Dubai Smart Government, DIVA, Dubai Ports, Sharjah Airports, then customs, then courts. So all these, I had been to all these places. Okay. And did many programs, leadership related, communication related. And then I was again approached by an international institution from United Kingdom, UK. They were doing their leadership programs in Dubai. So they asked me to do their programs. Okay. So I started designing and delivering their programs. So now I am associated with 2 institutes from UK. They do their programs every 3 months. There are programs which they hold and organize in Dubai as well as in London. Okay. So I do those programs, and besides, I am also designing my own programs, which I am delivering to different institutions, public, private sector, public sector, NGOs. So I had been to like some African countries where I was approached by the NGOs to come and deliver the programs, ministries. So this is how it is going. Okay, let me ask something, because I know plenty of people who are in this corporate sector who are doing like trainings and leadership programs. But every time when I just talking with them regarding their subject, they always talk about some challenges and misconceptions regarding training, corporate sector. What are those challenges and misconceptions? What you think is like? They have never shared with you any particular area where they have faced a challenge, because I have not faced any such challenges. Okay. I would say yes, but I cannot say it openly. What challenge was that? It was with one of or couple of the public sector But institutions. I would definitely ask it if it's like not that kind of confidential. हाँ नहीं confidential नहीं है, वो बस ये होता है ना कि असल में I don't know whether I shall. Okay, let me say it. So the very few trainings when I was new in the corporate sector, corporate training programs and all this. So once I was called by Abu Dhabi Police, and there was a group of all locals, and there Okay. were 3 Americans also. Okay. And this was an HR related training. By the way, I am also a certified human resource professional. So I Okay. got my HR certification from SHRM US. Okay. So I was doing the HR training programs also. So this program was for competency related program for HR professionals, but that was a big team of professionals from Abu Dhabi Police. And when I went there and I started doing the training in English, because it was agreed that the training will be delivered in English. So 2 or 3 of the locals, they stood up and they said, oh no, wallah, wallah, la Angrezia, Arabi. So I said, actually, we have got the approval that it has to be done in English. He said, no, we are leaving.
Okay. we're going. They were Then? about to leave, so I then, okay, wait a minute, let me find a solution. So, and then I call one of my friend. He is a Jordanian, and he was working with me. I called him and I told him that, okay, now there is a situation I am facing. What shall we do? He said, okay, Farah, I'm coming. Wait, just you keep holding them for a few minutes. I will be there. Okay. So I engaged them in different training activities. Okay. So by the time he came, he said, okay, wallahi, I don't know anything in HR. You speak in English, I'll I'll do translate it it. I'll translate in Arabic. And this Okay. was only for the first day. The second, it was a 5 days program. The second day they were normal. They said, okay, do it in English, no problem. So this kind of challenges sometimes we can face. can face, But yeah, besides, obviously. other than this, yes, it happened very rarely. But yes, sometimes they are very trainees or participants. Basically, leadership programs may, the participants are all professionals. No, They are all seniors. the challenges are something that I have heard about it as like you know about my field as well. I have also did a lot of programs, leadership training and corporate training, and most of my friends they are complaining about that there are some big I was coming fishes to that in one. Pakistan I was and giving to here, that one. and they can trap you, they can use you, and they can just throw you as a trash. And there are a Uh-huh. lot of people who are misusing this kind of things, and especially whatever we are just taking it is there's few names. I would not mention Quote those names. Yeah, I those understand. takes in Pakistan and some in India. That especially sometimes we just deliver a session. Personally, when I deliver a session, I know after 30 minutes Yeah, the how is it? response and the feeling which we have just delivered it will be finished. It's not something that will be sustained for a long time. True, exactly. So somehow it's a fiction. It's like a fake element which we just try to emphasize on our audience. So there are a lot of people who are just criticizing this sort of leadership programs, अच्छा, corporate this training. is very interesting question. Am I and, right? You're right. Actually, Okay. मैं आपको इसका explain करती हूँ. It's not only in the corporate programs. अब इसमें देखें, मैं आपको कह रही हूँ ना कि पाकिस्तान में अभी बहुत सारे improvements की ज़रूरत है. हम लोग big fish तो बन गए हैं, लेकिन हम लोग respect और डिग्निटी को जो है ना मेरे ख्याल में आप ignore जान कर गए रहे हैं. मैं किन किन एलिमेंट्स के बारे में हाँ, बात किन बिल्कुल. लोगों के बारे में मैंने हाँ, बात की I है. understand. Okay. वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी का जो एलिमेंट है ना, हम उसको नहीं सोच रहे होते. अगर आप, दिस इज़ अ सैड थिंग. एक्चुअली इट्स अ वेरी सैड थिंग कि हमें पाकिस्तान के बारे में ऐसा कोई ऐसा फियर क्या कहते हैं उसको, फीलिंग मिलती है. ठीक है ना. Not only about Pakistan, India is also doing the same मुझे thing almost. इंडियंस के साथ नहीं हुआ ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम वर्किंग विद इंडियंस, राइट. ऑनेस्टली मुझे इंडियंस के साथ ऐसा I कुछ work भी with नहीं them, हुआ. so I have अच्छा. the experience. अच्छा, मेरा More or नहीं less they are हुआ. same. मेरा नहीं हुआ, इंडियंस के साथ Okay. एक्सपीरियंस नहीं हुआ. हाँ, थोड़ा बहुत जो है आप कह सकते हैं कि आप अरब उस कल्चर का एक हिस्सा है वो. लेकिन पाकिस्तान में मुझे ये चीज़, पाकिस्तान से जो भी कैंडिडेट्स या डेलीगेट्स आते हैं, उधर मुझे ये चीज़ फील होती है. Okay. ठीक है. एक फील ये होती है वो कि हम वी आर हेयर, और तुम जो बता रही हो या तुम जो बता रहे हो, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है. फायदा नहीं है. हाँ, इसका ये कुछ भी नहीं है. मतलब दिस इज समथिंग व्हिच So इज if you can वेरी just sum it ऑब्वियस up- इन देयर बिहेवियर. Sum it up, if you can sum it up, it varies from place to place and from trainer to trainer. आई गेस सो, बिकॉज Okay, okay. मुझे जो है वो इंडियन का तो नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में का ये थोड़ा है. सा हुआ है. Okay, fair enough. Now coming toward your home project, your हाँ husband जी. project. हाँ It's जी. very important to discuss it right now. वेरी गुड. हाँ, एक्चुअली So- इंटरेस्टिंग ऑल्सो, क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट डोमेन है. Global Max. मैक्स ग्लोबल. Max Global. Yes, Sorry Max for Global. the name Max Global. यस. And you're the director of Max Global. What is it? How does it work? अच्छा, okay. थोड़ा सा उसके बारे में See, बताइए. Max Global is basically a consulting company. It's a Okay. management consulting company. And 6 years now, we started this project, and alhamdulillah, it's really doing well. It's
going to be a big name, hopefully, Inshallah. with my vision that I want to see Max Global as a solution provider to all tax related issues in this region, and not in this region, in the world. This is what I Inshallah. have taken from His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid. He said about Dubai that I want Dubai to be the best place in this region, not in this region, in the world. Okay. So just I am very inspired by him. So उनके words को quote कर रही हूँ कि मैं भी Max Global के लिए ऐसा vision करती हूँ. Okay. Now Max Global basically we are providing tax services. Okay. People know that इस region में कभी tax होता नहीं था. ठीक. लेकिन जब आया तो बहुत fear लोगों को हुआ, uncertainty थी, knowledge नहीं था. तो we decided that the purpose of Max Global is not money making, it's about educating also people. Okay. कि हम यहाँ पे आपको सर्विस तो देंगे, लेकिन हम सर्विस आपको एजुकेट भी करेंगे उसके ऊपर Okay. कि हम आपको क्या दे रहे हैं और ये आपके लिए कितना ज़रूरी है. ठीक है. ठीक If है. I can ask you something, this is your camera. If you can just look at the camera and just you can just summarize it in just 30 seconds. The viewers, the Dubai people listening you. उर्दू just में to- बोलो, इंग्लिश में बोलो. इंग्लिश में बोल दें, उर्दू में बोल Okay. दें कि आप क्या बताना चाहती हैं. What is Max Global? The viewers are listening to you. Max Global Consulting, it's a tax consulting company and it's located in Dubai. We provide all types tax solutions to the customers. It's corporate tax, it's VAT, it's anything that you are worried about, your VAT or corporate tax, registration, or what is going on. We are here to help you out. Now, we are specialized in providing services that will make you stress free. Why I said so? Because we take all the risk on our shoulders. We will make you feel comfortable. Most of the tax companies, in fact, all the tax companies, they will give you the service. However, they may not take you to the level where it is important for you to be relieved from the pain and stress of, okay, the taxes are there due. We take that. We will take it on us. We'll register you on our portal. We'll give you access. And here we come with the solution for all type of customers. It's a big shot. It's a mediocre level organization, all SMEs. We have all such kind of customers with us. So be with us. So viewers, I personally recommend her company Max Global. I'm a satisfied client. His husband. Yes, you have been our customer. Exactly. So I highly recommend this company. If you are a business owner or you have any sort of business here in Dubai, so don't worry about your tax or returns. These guys are the perfect one who can take care of your all tax returns. So this is your promotion. So we will head Yes. towards something Okay, else. yeah. I hope so. Max Global has been covered. And Max Global, I mean, it's just the start. You allowed me very little time to say about Max Global. I but want something to say else a I'm lot. just trying to ask is, being a director, being a mother, being a wife, being a professor, being a trainer, being a motivation speaker, how did you manage all of these things? Okay. Actually, this is what I said. IBA makes you a good manager. You are promoting IBA instead of Max Global. No. See, मेरा IBA के साथ जो रिलेशनशिप है, अब तो खैर बहुत पहले की बात होगी. अब तो मैं इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ IBA के साथ. लेकिन ये कि मेरी लर्निंग में IBA ने बहुत रोल प्ले किया है. Okay. और जो हम कहते हैं ना कि हम स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं. Okay. किसी लेवल पे भी कर लेते हैं. मैक्स ग्लोबल शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फंड्स चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए, टाइम चाहिए, डेडिकेशन चाहिए. एंड देन वी थॉट ऑफ इट दैट इट इज़ पॉसिबल, इट कैन बी डन. जब हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं तो वाई कैन नॉट वी डू इट फॉर आवर ओन सेल्व्स. Okay. और फिर विजन, वही जो मैंने आपको कहा कि विजन यही है कि एजुकेट करें लोगों को ठीक. इस fair enough. चीज़ के ऊपर. Fair अब एज अ मदर, अब
ऑनेस्टली बीइंग अ मदर, यस इट इज़ पॉसिबल. बच्चे मेरे स्कूल से आते हैं ना, यू नो, मैं कहीं पे भी हूँ उनकी कॉल आ जाती है. ये हमें भी एंड हमारे सवाल होंगे उसमें हमें इसका पता चल जाएगा. राइट नाउ वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो विल जस्ट मूव चलें, टुवर्ड अनदर continue. सेगमेंट. दिस इज Sure, रैपिड फायर sure, राउंड. राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग यू इन अ ट्रबल. अच्छा, Okay, okay. so you will have only 10 seconds to respond. Oh, If you don't, then you might lose something. So, the very first question I would definitely ask you, you are in a lift and you are going somewhere and the lift suddenly tell you that you can take either your kids or your husband. Who would you like to take with you to the top floor where you are living? Akbar bhai or आपके बच्चे? मेरे बच्चे. Akbar bhai? Akbar can take care of himself, right? I know he is. It's a very really diplomatic good. answer, but it's okay. He can. बच्चे नहीं कर सकते अपनी केयर. वो तो उनको कोई चाहिए, ठीक है? Okay. Akbar can handle the situation himself. बच्चे नहीं कर सकेंगे. Okay. So I'll take kids, so अकबर आ जाएंगे खुद. Okay, एक और सवाल मैं डाल देता हूँ. इन्होंने भी अपने आप को बड़े डिप्लोमेटिकली सेव किया, बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा. बीइंग एन एंकर, मैं ज़रूर इसको मुसीबत में डालूंगा. आप जा रही हैं स्पेस रॉकेट पे और चांद पे जा रही हैं. आपके पास 2 लोग हैं. एक है आसिफ रज़ा और दूसरे इश्तियाक साहब और तीसरे हैं जनाब आपके हस्बैंड अकबर साहब. तो तीनों में से एक आप छोड़ेंगे स्पेस में, दूसरे को आपने हवा में छोड़ना है, तीसरे को आप अपने साथ ज़मीन पे लेके आ सकती हैं. किसको स्पेस में छोड़ेंगी, किसको हवा में छोड़ेंगी और किसको नीचे लेके आ सकती दोबारा हैं? से रिपीट करें क्वेश्चन. आप जा रही हैं स्पेस रॉकेट में स्पेस पे. वापसी पे आप सिर्फ एक ही बंदा लेके आ सकती हैं. 3 आपके साथ जा रहे हैं, अकबर भाई, आसिफ रज़ा साहब और साथ ही साथ इश्तियाक साहब. अच्छा, एक को वहाँ पे छोड़ के आना है, एक को बीच में छोड़ना है, एक को जमीन पे सही सलामत लेके आ सकती है. एक को उधर ही छोड़ना है, एक को बीच में छोड़ना है और एक को मैंने वापस नीचे लेके आना Exactly. है. तो मैंने किसको छोड़ना है? ठीक है, मैं अकबर को छोड़ के आऊंगी. अकबर को छोड़ के आएंगे. हाँ. वैसे बहुत ज्यादा तंग है आपसे अकबर भाई. नहीं, आपने पूछा नहीं मैं अकबर को क्यों छोड़ के आऊंगी. नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा. पहले आप बताएं, ये मैं आपको इसका जवाब आप अपने आप को भेजा कहाँ पे था? भेजा कहाँ पे था आपने? स्पेस में, ऐसी हवा में. स्पेस में तो हवा में तो दूसरे को छोड़ के आई हूँ ना. हम जा कहाँ रहे थे, गए कहाँ थे हम? मार्स में जा रहे हैं. मार्स पर. हाँ, तो फिर तो अकबर को ही छोड़ के आऊंगी. ठीक हो गया. हवा में किसको छोड़ रहे हैं? हवा में छोड़ दूंगी आसिफ. जो छोड़ रहे हैं वो मर रहे हैं, वापस नहीं आ रहे. हवा में नहीं वो मर नहीं रहे. आपने मार्स वाले को मरने का नहीं कहा. मैं मार्स पे इसलिए चुकी कि मार्स इज द न्यू वर्ल्ड. ओके, वहां अकबर को छोड़ के आऊंगी. वेट करो, मैं आ रही हूँ. हवा में किसको छोड़ रही है? हवा में छोड़ रही है आसिफ भाई को. वो नीचे नहीं आ रहे, कोई पैराशूट कुछ भी नहीं है. इश्तियाक को नीचे लेके आ रही. हवा उनको खुद ही नीचे फेंक देगी आसिफ भाई को. नीचे इश्तियाक भाई होंगे उनको पकड़ने के लिए. अगेन आपने मेरे साथ अच्छा खेला है. चलें, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका आपने जवाब देना है. 1 वर्ड आंसर आपने देना है. आपका सवाल है आपके सामने. इफ़ यू कुड हैव 1 सुपर पावर, व्हाट इट वुड बी? गिव मी 3 ऑप्शंस. नो, यू हैव टू चूज बाय योरसेल्फ. इट्स योर लाइफ, योर सुपर पावर. दिस 10 सेकंड्स में तो इसको मैं नहीं आंसर कर सकूंगी. थोड़ा टाइम दे दें फिर. नहीं, टाइम तो नहीं है ना, यही तो इसका. इफ आई हैव टू बी हैव 1 सुपर पावर, what what would you like to have? नजर ना हो. नजर ना आए. हाँ. वो मिस्टर इंडिया बन जाए. ओके, व्हाट्स योर फेवरेट कोट और एनीथिंग? I have many actually. Any- अभी मैं एक anyone you HR can से share? रिलेटेड बताती हूँ. Okay. जो कि फोर्ड मोटर्स के हेनरी फोर्ड का कोट है. वेरी ब्यूटीफुल कोट एंड आई ऑलवेज फील इंस्पायर्ड विद दिस वन. हेनरी फोर्ड ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया ऑफ कोर्स, ठीक है, और वेरी सक्सेसफुल. ही सेड टेक अवे माय फैक्ट्रीज, टेक अवे माय एसेट्स, टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम मी, leave my people with me and I can build it again. Oh, mashallah, that's a very nice one. If you have to choose another profession, what would it be? I want to be the same profession. Same profession. Yes. Okay. What misconception people have about you? That you think people have that misconception regarding ये तो you? बहुत लोग बता सकते हैं. बहुत सारों के अलग अलग मिसकंसेप्शंस हैं. But आपको लगता है कि यार लोग मेरे बारे में ऐसा लोग सोचते हैं. समझते हैं कि मैं बहुत नहीं. दिस इज एक्चुअली इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. क्योंकि मैंने तो That's why I डिफरेंट am व्यूज asking. सुने हैं. डिफरेंट व्यूज सुने हैं ना डिफरेंट लोगों से. कोई भी एक आप बता दे. अच्छा मजा नहीं आ रहा, आप सारे सवालों का ना बेड़ा गर्क कर रही हैं. नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड. Okay. राइट. और कुछ लोगों ने कहा यू आर वेरी नहीं, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि लोग जो कह रहे हैं, आप Okay, क्या so समझते हैं तो कि सब- गलत कौन सा? आप ऐसे नहीं हैं.
आप सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, नहीं, मैं सॉफ्ट हार्टेड तो हूँ। वो तो फिर सही हुआ ना। हाँ, नहीं, मैं गलत वाला बता देती हूँ। कुछ लोगों का मतलब ये कि मैं सेल्फिश हूँ। ओके, आप नहीं है। मैं सेल्फिश नहीं हूँ। ओके, अगर किसी को आप जिंदगी में एक एडवाइस देना चाहते हैं, कौन सा होगा? नेवर गिव अप। ओके, वन थिंग यू कांट लिव विदाउट। माय किड्स। नॉट अकबर अगेन। अकबर भाई, चलिए इसको चेंज you करते हैं। are अकबर। not the priority अकबर। in her life. अकबर के बगैर Believe वाकई me. में No, नहीं, no, no, no. आपकी No, बात no, सही है accept it. एक्चुअली। नहीं नहीं, सही में No, बता no, रही no, हूँ no, उसको। no. मैं We are going on. अच्छा, I'm not एक getting मिनट, you मुझे time to आप इसमें story. ना रेकॉर्ड कीजिएगा, इसको डिलीट कीजिएगा। लेकिन आपकी बात सही है, क्योंकि कोई चीज़ होती है कहीं पे भी, इतनी सी भी हो या इतनी बड़ी हो, जब तक मैं अकबर को कॉल ना करूं और बता ना दूं तो मुझे एंजाइटी रहती है। That was a very good cover shot, but again, नहीं नहीं, कट कर दीजिएगा। ये cut नहीं होगा. अकबर बच्चे। Okay, the last question. What sort of movies you like? Romantic, comedy, or action? ऑल of एक्शन it. नहीं इतनी। Comedy and romantic. हाँ, कॉमेडी एंड रोमांस। Okay. Now I would like to ask something regarding Dubai. How was your experience when you landed on Dubai land and experienced this international city? Will be my destination, long-term destination. Exactly. Okay, when I landed in Dubai, I wanted to live here. Okay. Okay, For living, it's good because most of the people say it's like a one season नहीं, country. मैं You तो can't बहुत live. खुश हूँ यहाँ पे, Seriously? honestly. Because maybe you are a working woman, that's why you are happy here. But most of the people, when I meet them, the housewife, they say it's not a place where हाँ, you can उसके live. लिए उसकी वजह यह है ना कि यहाँ पे उनके पास करने को कुछ नहीं है. करने के लिए कुछ नहीं है। Okay, okay. जिसके पास करने के लिए बहुत कुछ होगा, Hmm. तो उसके लिए तो बहुत अच्छी जगह। Okay, if I ask you, what you have seen that Dubai should do this, other people living here should do this. For example, something that you think it could be done here, but normally people are not doing this thing. Something that you are missing here. Or anything you want to contribute to this nation, this दुबई country, yeah. दुबई के तो कंट्रीब्यूशन करने को बहुत दिल करता है। आई रियली फील लाइक क्या हो सकता है वो? मैं सोचती हूँ मैं किसी टाइम पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन लॉन्च करूँ जिसमें ब्लेंडिंग हो एजुकेशन की। क्योंकि मैं जब व्हेन आई लुक एट माय किड्स गोइंग टू स्कूल एंड ओके दिस इज अ वेरी गुड स्कूल, दे आर गेटिंग वेरी गुड एजुकेशन व्हिच इज वेरी फाइन, बट आई पर्सनली थिंक लाइक द टाइम इज चेंजिंग नाउ। इट्स लाइक इट डिमांड्स नॉट ओनली एजुकेशन, इट डिमांड्स स्किल्स ऑल्सो। Okay. हमारे टाइम पे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि हाँ एजुकेशन जो है डिग्री होनी ज़रूरी है। अब चीजें चेंज हो रही अब ये हैं. चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब यू Okay. नीड टू हैव स्किल्स टू बी गिवन टुगेदर विद Okay. एजुकेशन। वो मिसिंग है स्कूल्स में। Schools में एंड आई missing. फील Still. लाइक दैट आई शुड ब्रिंग सच काइंड ऑफ Okay. स्कूल सिस्टम या स्कूल लॉन्च हो या एजुकेशनल कुछ ऐसा मेरा वेंचर हो जिसमें मैं वो ब्लेंडेड फॉर्म लेके आ सकूँ। Okay. Now I'll, going to our topic. It's our last questions of this podcast. Being a Pakistani, we feel that whatever we are experiencing here, our country or homeland is much more than that. We are having much more than that. Resources, the intellectuality, education, you just name it, we have it. But besides all of these things, Pakistan is nowhere in the world. You can take it in economy, you can take it as a political structure, leadership, anything. You just called any bad thing. One word solution for Pakistan is the true leader, which is missing. जब आपके पास लीडर हो तो सब कुछ हो जाता है। दिल लीडर दुखता नहीं, है. बहुत ज़्यादा दुखता है। ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा दुखता है, क्यों नहीं दुखेगा? ठीक है ना, वो मेरा लैंड है, मेरी कंट्री है, मेरे लोग हैं, दुखता है दिल। बट
एक्चुअली उसके लिए आपको बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसा ही है। अगर आप चाहिए ना कि you- आपने वहाँ पे चेंज लाना है, ओके तो चेंज लाने के लिए वहाँ पे आपको ना रूट लेवल पे जाके क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन फरा जैसे इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ से भाग वहाँ जाते से हैं, भाग जाते हैं दुबई में, दुबई सेटल के हो जाते कंट्री को हैं। कंट्रीब्यूट करने की उसका सोच रहे हैं, तो हु विल डू दैट? उबैद निकल गया, फरा निकल गई, अकबर निकल गया, इश्तियाक निकल गया, आसिफ निकल नहीं, गया, ये ऐसे सब वापस बहुत सारे जाएंगे, निकल ये गए। सब वापस जाने को तैयार हैं। हम्म क्यों ये निकले वहाँ से, ये भी देखना चाहिए। हर किसी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। Okay. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए लोग निकल आए। मैं तो पैसे के लिए नहीं, मैं तो वही कह रही हूँ ना, हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ है रीज़न, तो वो रीज़न बहुत वैलिड है। ओके ठीक है, बहुत वैलिड रीज़न है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ क्यों नहीं रहती या मैं क्यों नहीं रही वहाँ पे? व्हाई डिड आई प्रेफर टू मूव आउट फ्रॉम पाकिस्तान एंड मूव टू दुबई? कि वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है लोगों का, लोग एजुकेट होके भी ना ऐसा ही है। अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है। तो वो अब जब आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं तो ऐसे लोगों में आपका सर्वाइवल मुश्किल हो डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। Right. Farah, this is the end of our episode, but before ending it, I will ask you anything you want to share with the viewers, with my viewers, with your fans, your followers, anything you would like to share. This is your camera. You can share with the viewers you have. अब मेरा शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें भी होंगी। तो मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं जब सामने रखती हूँ, अपने स्ट्रगल्स को देखती हूँ, मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल लोगों ने किया है और मुझसे ज़्यादा लोग कमिटेड हैं, मुझसे ज़्यादा लोग लॉयल हैं और मुझसे ज़्यादा लोग जो हैं वो डिटर्मिन्ड हैं। यहाँ कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है, इस लाइफ में कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप का मतलब है यू आर नो मोर। तो आप उस फुल स्टॉप के आने से पहले जितने कॉमास लगा सकते हैं लगाएं, ठीक है, जितने इन्वर्टेड कॉमास क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट करें, जितना कुछ आप उसमें उस एक पैसेज में लेके आ सकते हैं ले आएं, क्योंकि ये आपके पास अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी दी है कुछ करने के लिए। कोई किसी तरह का वैल्यू एडिशन दे दीजिए सोसाइटी को, लोगों को, सब जो कोई आपके पास है, कोई वैल्यू एडिशन जो कि ऑफ कोर्स हम सब ने मट्टी में मिल जाना है, लेकिन कहीं कोई वैल्यू एडिशन जो है ना वो आपका सदका जारिया भी बन सकता है। ऐसा ही सो आई वुड से कि कंट्रीब्यूट करें, ऐसा पास ही इट जिस ऑन तरीके से एंड कीप इट गोइंग। आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स, कोई ना कोई वो आपसे लेके आगे उसको, ताकि उसका अजर आपको भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Farah. The way you talk about leadership, the way you talk about Pakistan, the way you talk about trainings and all these things, it were marvelous. I never expect this kind of, अभी तो a बहुत side of कुछ yours. बोला ही नहीं। So I'm absolutely honored to आपका have you on बहुत my शुक्रिया। show. Ladies and gentlemen, हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी अभी बहुत है। मोस्टली मुझे जब लोग मैसेज करते हैं, दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स, ये हुआ मेरे साथ, ये मेरे साथ मसला था वरना मैं ये कर जाता, पैसों का मसला था शायद फिर मैं यहाँ तक पहुँच जाता, मुझे ये बीमारी थी तो शायद मैं ये कर जाता। आज जाके ज़रा सर्च कीजिएगा कि आपसे बदतर कंडीशन में कितने लोग इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, 1 नाक, 1 मुंह, 2 पैर, 2 हाथ। ज़रा देखिएगा दुनिया में कितनी फ़ीसद लोगों के पास ये आज़ा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मुकम्मल जिस्म दिया हुआ है। जस्ट सर्च इट आउट। कितने लोगों को ऐसी बीमारियां हैं, जस्ट लाइक फरा, ऐसी बीमारियां हैं कि वो लाइलाज है एंड दे आर सर्वाइविंग विद इट, दे आर जस्ट नेलिंग इट। वो इन डिसेबिलिटीज़ के साथ भी अपनी पहचान बना के रखें। तो अगर वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? एक ही बात कहूँगा, अपनी मौत से पहले मत मरिएगा, क्योंकि कल को जवाब आपने देना है, किसी और ने नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।